Very good morning, students. Myself Vishal Pandey, your SST teacher, and I hope you all are doing good. You all are studying. Okay, so let us start today a new chapter from your history portion, rural life and society. So, as you all are aware, that we had already finished 3 chapters from history and then of geography and civics as well. Today we are taking a new chapter from a history portion, rural life and society associated with rural people and the revenue which they used to give in ancient days as well as in British days. Without wasting time, let us begin. So as you can see on the screen that in the olden days in India, basically land was held for life. Farmers cultivated a piece of land for generations, and that land was seen as belonging to their family. Nobody could evict them so long as they paid a part of their produce as tax. Villages were largely self-sufficient. What it means, students? The villages were largely self-sufficient. The people from village areas, they were self-satisfied or self-motivated or self-dependent on the villages itself. वो शहर नहीं जाते थे पुराने समय में, वो गांव में ही रहते थे, जिसकी वजह से वो अपनी जीविका वहाँ चलाते थे. ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेर शाह सूरी, a Muslim emperor who ruled India, especially in between the Mughal emperors, between Humayun and Akbar. तो याद रखिए इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? पट्टाज वर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ओनरशिप. कीप दिस इन योर माइंड. द गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम रेवेन्यू वाज चार्ज्ड एंड डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की फर्टिलिटी से ही ये डिसाइड होता था कि उस पर कितना रिवेन्यू लगेगा. अगर सॉइल अच्छी थी, प्रोडक्शन अच्छा होता था, तो जो रिवेन्यू था वो ज़्यादा लगता था. इफ़ द सॉइल इज़ अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, और बारिश नहीं हुई, ड्रॉट हो गया किसी साल, तो उस समय बहुत ही कम रिवेन्यू लगाया जाता था, रिड्यूस कर दिया जाता था. कभी कभी तो रिवेन्यू को लिया ही नहीं जाता था, माफ़ कर दिया जाता था. सो इन दैट सेंस यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ द rulers were ruling in India at that particular time, at that period of time. One more interesting thing is there about Sher Shah Suri. The Sher Shah Suri was the man who started NH2, that is the National Highway number 2, Grand Trunk Road it was called in his regime. When he started that as Grand Trunk Road it was called. Nowadays we call it National Highway number 2, NH2, from Calcutta to Delhi through UP. So keep this in your mind. If somebody asks, you have to answer in association with Sher Shah Suri. Now let us move forward. The next slide, as you can see, the land revenue policy under the British government. As I told you that this chapter will deal ultimately about the revenue system, the policies of Britishers. Ultimately, mainly we will talk about the policies of Britishers. हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करेंगे कि उनका गांव में किस तरह का रोल हुआ करता था, किस तरह से वो लोग रूल करते थे, and how people were suffering or they were enjoying. कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें इंजॉय करने का मौका मिलता था इन सारे सिस्टम में, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. बट एवरीथिंग चेंज व्हेन द कंपनी टुक कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. Instead of a part of the produce, the company demanded a fixed amount in cash. To pay the amount, farmers had to cultivate cash crops like cotton, poppy and indigo, which brought in more money than food crops like wheat and rice.
Farmers who earlier grew their own food and were self-sufficient now had to buy part of their requirements. The Indian villages were no longer self-sufficient. अभी मैंने आपको बताया कि विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने रिवेन्यू बढ़ाया, टैक्सेस बढ़ाए, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को वीट और राइस, ये सीजनल जो क्रॉप्स थे उनको छोड़कर इकोनॉमिकल जो कह सकते हैं कि कैश क्रॉप्स थे जो पैसे ज़्यादा देते थे, जैसे कॉटन, शुगर केन एंड इंडिगो, इस तरह के फार्मिंग उनको करने पे मजबूर होना पड़ा। और जो विलेज जो थे इंडिया के, अब वो बिल्कुल भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह गए थे। तो ये आपको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारे विलेजेस थे, दे वर सफरिंग अ लॉट, they were suffering because of high revenue and high taxes. So ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस किए फॉर्म ऑफ रिवेन्यू में। उन लोगों ने चेंजेस किए, प्रॉपर चेंज किए, मेजर चेंजेस किए, जिससे कि यहाँ के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम उठानी पड़ी। वो चेंजेस क्या हैं, वो मेजर चेंजेस क्या हैं, उसको हम लोग समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दोज चेंजेस इन डिटेल बिकॉज दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दोज चेंजेस। किस तरह से लोगों को चेंज किया, हाउ द थिंग्स चेंज्ड एंड हाउ दे टुक एडवांटेज ऑफ इंडियंस। लेट अस सी with the help of next slide. As you can see, 3 forms of revenue collection were introduced in India. Permanent settlement of Bengal, it was the first one. Second one was Rayatwari system. Now this Rayatwari system is very important one. I will be explaining this you in detail. And then Mahalwari system. So Rayatwari and Mahalwari, both the system were associated with tax collection, and obviously the permanent settlement of Bengal was also associated with tax. So don't forget it, keep this in your mind that and also Britishers ने जमींदार्स को अपॉइंट किया ताकि वो उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। रेवेन्यू कलेक्टर्स कहा जाता था इन्हें, जमींदार्स को। तो जमींदार्स कौन थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसी स्पेसिफिक एरिया में। अब हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल की। देखिए 1793 में कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट इन कैश on a fixed date as land revenue to the treasury, irrespective of what they could collect. Slowly the jamidars brought more areas under cultivation and made more money while they paid the same fixed amount to the company. Many jamidars were benefited more than either the company or the peasants. क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट्स? It is clearly mentioned here that the jamidars and all the permanent settlement of Bengal was introduced by the Governor General of Bengal itself in 1793, Lord Cornwallis. उसने ये इंट्रोड्यूस किया और जमींदार्स को एक फिक्स्ड अमाउंट कलेक्ट करने को बोला गया, जो कि पीजेंट्स या फार्मर से कलेक्ट करना था। लेकिन स्लोली जो जमींदार्स थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, बहुत ही अच्छा कलेक्शन करते थे, एंड मेड मोर मनी वाइल दे पेड द सेम फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी। वो भी क्या करने लगे, जमींदार्स भी करप्ट थे। जमींदार्स क्या करते थे, फार्मर से ज़्यादा टैक्सेस वसूल करते थे, रेवेन्यू ज़्यादा लेते थे और कंपनी में कम पहुंचाते थे, यानी वो घपला करते थे। इन दैट सेंस यू कैन अंडरस्टैंड मैनी जमींदार्स बेनिफिटेड मोर देन आइदर द कंपनी और द पीजेंट्स। तो सब जमींदारों ने इसमें क्या किया, बहुत ही पैसा कमाया, बहुत ही पैसे बनाया जमींदार ने। तो जमींदार्स के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। इफ़ यू सी द एडवांटेजेस फॉर द ब्रिटिश, कि क्या एडवांटेजेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस परमानेंट सेटलमेंट से,
ये भी समझ लीजिए, सर्टेन पॉइंट्स आर देयर। द जमींदार्स टर्न्ड आउट टू बी फर्म सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा हुआ कि जमींदार्स जो थे वो हेल्प करते थे ब्रिटिशर्स को। सेकेंड पॉइंट इज़ बाय फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंश्योर्ड दैट इट रिसीव द सेम फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट। इससे ये होता था कि फिक्स डेट पे फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड रेवेन्यू कलेक्ट हो जाती थी जो और ब्रिटिशर्स को मिल जाया करता था। थर्ड इज़ इट वॉज ईजियर टू डील विद अ फ्यू जमींदार्स दैन विथ 100 ऑफ फार्मर्स। अब जैसे किसी गांव में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों से ब्रिटिशर्स टैक्स अलग अलग कलेक्ट करेंगे तो बहुत ही मुश्किल था। वहाँ पर उन लोगों ने 100 लोगों पे एक ज़मींदार अगर अपॉइंट कर दिया तो वो ज़मींदार खुद टैक्स कलेक्ट करेगा और ब्रिटिशर्स को दे देगा। तो इट वाज इजी टू डील विथ फ्यू जमींदार्स रैदर देन डीलिंग विथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। डिसएडवांटेजेस क्या थे स्टूडेंट्स, ये भी जान लीजिए। पहला, द जमींदार्स इल ट्रीटेड द फार्मर्स टू एक्सट्रैक्ट द रिवेन्यू। जमींदार्स जो थे वो फार्मर्स के साथ मिसबिहेव करते थे, उनके साथ सही से बर्ताव नहीं करते थे, लैंग्वेज सही नहीं यूज़ करते थे। सेकेंड वन वॉज स्मॉल फार्मर्स हु हैड टू ईदर sell or mortgage their lands to pay the revenue became landless laborers। छोटे छोटे जो फार्मर्स थे जिनके पास छोटे सा ज़मीन का टुकड़ा था या छोटा फील्ड जिनके पास था, वो इन लोगों की कह सकते हैं क्रूएलिटी के कारण लैंडलेस हो गए, यानी उनके पास अब कोई भी ज़मीन नहीं थी, वो बेघर हो गए। इन दैट सेंस इट वॉज़ अ हॉरिबल कंडीशन, इट वॉज़ अ हॉरिफाइक सिचुएशन। To meet increasing expenses, the government had to increase the tax in other provinces। गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस किया, इंक्रीज़ किया और इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट को हमने समझा। अब हम समझेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।